I am Mrs. Mehta. I am from Vietnam. And I have blessed with three sons, and they all are very active and very intelligent. They all are doing government job, and uh, my daughter-in-law also uh, busy in their work. Eldest one is dietitian, and but she is not in practicing. Second when second daughter-in-law also uh, postgraduate, and she is a Ayurvedic doctor, naturopathy, but she is not in practicing. Third one is a uh, third one is yeah. Third one doctor is she is a doctor, dentist, and she is doing her practice carefully. Yeah, and she does their work very carefully in her own clinic. I placed with six grandchildren. Eldest one uh, named Samira. She is 21 years old. Second one is named second one is Deve. She is studying in ninth standard. And next second, my second number, second son, uh, his name is Arvind. Uh, his eldest son named Aryan. He is studying in 12th standard, and younger one is his sister. She is studying in 11th standard, and my youngest son named Ashish. He ha he has two uh, sons. Uh, they they are very small. Uh, first grandson named Veer. He is only 3 years old, and elder is Vihan. He is 12 years old, and nothing else on. We all are today. Nowadays, we are living separately, three because my our because our building going constructed going is construction. So mm, construction was going on. Thereafter, we will live together in separate floors and something. Oh. Ma'am, you are not, you are mute. Flat scheme. I think duplex, three duplex. One is yeah. Yeah, yeah. And office also on first floor, and ground floor is parking place. First floor for office, and for me for separate, and third, fourth, and fifth duplex are for them. So I am planning about this. बाकी
gods. Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, okay, ma'am. Ma'am, you you gave me. Okay, okay, okay. Thank. Okay. Sneha. Hello, Sneha. Huh. Are you ready or not? Yes. हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं ऊपर। हाँ, बिल्कुल छोटे। हाँ, अ, मैं घर पे मुस्कुराना। come and come again, Sneha. What is your मैं word? घर मुस्कुराना, स्माइल, Okay, okay. स्माइल्ड, स्माइल्ड। हाँ, make the sentence. प्रेजेंट सिंपल टेंस। Hmm. यू 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 यूज योर स्माइल इज वेरी नाइस। तुम्हारी स्माइल नहीं। आंटी, कैन यू हेल्प? हाँ, बोलो। हाँ, स्माइल यानी मुस्कुराना, हाँ, मुस्कुराना। वह बहुत मुस्कुरा रही है। वो तो प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा ना बेटा, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस।
हाँ, वह। प्रेजेंट सिंपल बना रहे ना आप पहले, हाँ हाँ। तो उसका सेंटेंस अलग होगा। वह बहुत मुस्काती है। मुस्कुराती है। हाँ, इसका बनाओ मुस्कुराती बेटा। है। हम्म। शी शी स्माइल हम्म। शी स्माइल। बेटा वर्ब ठीक करो, सिंगुलर के साथ। स्माइल वेरी फ्रिक। नहीं बेटा। और कोई और किसी तरह बताओ, हिंदी में बोलो पहले। शी स्माइल वेरी गुड। वह बहुत अच्छा मुस्कुराती है। नहीं बेटा, ये तो रॉन्ग है। आई से बना लो बेटा, पहले आई से। आई से। हम्म। आई आई स्माइल वेरी गुड। मेरी मुस्कुराहट बहुत आ, अच्छी हो। नहीं। मैं बहुत अच्छा मुस्कुराती हूँ। माई स्माइल आएगा ना, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है। My 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 smiled is my smile is very good. ऐसा बना दो, वह स्कूल जाती है, या ऐसे सेंटेंस ले लो। Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. How are you, Sneha? I am fine, thank you, sir. How are you, Makaman? आई एम फाइन सर, थैंक यू। हाउ आर यू? अरे यार, चलो आज इसको लिख लो ढंग से। चलो लिखवा ही देते हैं। दो लोग हैं, उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। कुछ चीजें इतने दिनों से सही नहीं हो रही हैं, आज दोबारा ही लिख लो। हम भी दोबारा मेहनत कर रहे हैं बेटा, तुम भी दोबारा मेहनत करो।
दिख रहा है क्या लिखा है? इज इट विजिबल? No, sir. Your blackboard is not clearly visible. बेटा ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं हमारे पास। ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं। मेहता मैडम, क्या ये ब्लैक बोर्ड है? नहीं सर, ये वाइट बोर्ड है, बताइए। बोर्ड है। वो Sorry, why? छोटी बच्ची को बताइए कि ये व्हाइट बोर्ड है बेटा। मेहता मैडम, क्या आपको दिख रहा है ये क्या लिखा है? हाँ सर, मुझे दिख रहा है। बता दीजिए उसको। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए बहुत बार तो बताया, एक बार और बता देते। स्नेहा देखो, हम अपनी उंगली लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक बात पहले तो ये बात कि क्या आपका मोबाइल वर्टिकल है यानी खड़ा है? अगर खड़ा है तो उसे लेटा लीजिए और फिर मुझे डबल टैप कीजिए। और बेटा जब दो ही लोग हैं तो थोड़ा देखो ना, काहे को कैमरा बंद करके बैठ जाती हो तुम। और ये सुविधा भी देख लो, कई बार समझा चुके हैं, एक बार और समझा देते हैं। ये हम उंगली लेके जा रहे हैं और अपनी स्क्रीन को जहां हमारा चेहरा दिख रहा है हम डबल टैप करेंगे। अब देखो हम उसको खिसका के नीचे ला रहे हैं। इससे बड़ा देखना है बेटा तो इससे बड़ा भी दिखा सकते हैं। हम दो उंगलियों से उसको और खींच रहे हैं, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। बस बेटा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्या ये चीजें अपन सीख सकते हैं? Sir, you are clearly visible. अब हमने उसको फिर से डबल टैप किया, वो पीछे चला गया। तो जब इस ऐप में इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, वो भी फ्री में दे रहा है अपने को। डबल टैप करो, इतना बड़ा हो जाता है, फिर डबल टैप करो, फिर इतना सा हो जाता है। तो अपने को उसका फायदा उठाना चाहिए। मेहता मैडम ने बताया कि ये क्या लिखा है, तो इसको एक बार स्पेलिंग पढ़ो। मैडम एक एक शब्द पढ़वा दीजिए, बच्ची से नहीं बन रहा। QU. स्नेहा। पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया। ताली बजाओ बच्चे लोग, सब लोग। यस। क्वेश्चन लिखते हैं। इसकी एक एक स्पेलिंग पढ़ के दिखाओ इसमें। Yes, sir. HOW, how? ARERU. इसकी YO. हाँ, इसको पढ़ के दिखा दो। कहते हैं आप? इसको पढ़ दो। ANS. Answer. एक एक पढ़ते जाओ बेटा। I am FINE. Fine. The thank THANKYOU. Thank you and अब आखिरी का नहीं दिख रहा होगा तो हम ट्राइपॉड को खिसका दें। and and you. YOU. अब लिख लो बेटा, अच्छे से लिख लो, हम अभी बिल्कुल यहाँ से हटा नहीं रहे।
हालांकि एक बात और बताएं मेहता मैडम, शायद आपने देखा होगा, ये सब टाइप कर कर के मैडम खूब खूब मेहनत कर कर के पूरा बनाती हैं वीडियो और सब भेज रही हैं चैनल में। ये पूरा लिखा हुआ भेज चुकी हैं वो सब सब भेज दिया है, टाइप कर कर के पूरा अच्छे से भेजा है। मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। और आप कैसे है? बेटा इसको मैनर्स कहते हैं। अगर आप किसी से ऐसे नहीं बोलोगे तो वो मन में ये समझेगा कि ठीक है, पैसा ऐसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, देखने में अच्छी, लेकिन मैनर्स नहीं आते, ऐसा बोलेगा बात करने वाला। चलिए हम शुरू करते हैं। मेहता बेटा, हाउ आर यू? I am fine, thank you. And you? I am also fine. Complete the process. I am also fine. चलिए मैं ही शुरुआत करता हूँ, फिर मैं ही कंप्लीट द प्रोसेस कर दूंगा, लेकिन इस बार मैं स्नेहा से करता हूँ। स्नेहा, हाउ आर यू? Sir, I am fine and thank you. And you? आई एम ऑल्सो फाइन। अब मैं कंप्लीट द प्रोसेस करता हूँ। स्नेहा, कैसी हैं आप? सर, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? और ये कौन बोलेगा? मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? अब इसको अपने रटना तो नहीं है, तो एक बार थोड़ा लगे कि हम बात कर रहे हैं। हाउ आर यू स्नेहा? सर, आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। स्नेहा, कैसी हैं आप? सर, मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। और आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। मैं भी बढ़िया हूँ, धन्यवाद। अब आप आंटी से पूछ लीजिए। प्रमिला आंटी, हाउ आर यू? I am fine, beta. Thank you. And you? आप कैसे हो आंटी? मैं बढ़िया हूँ बेटा, धन्यवाद। और अब आप आप कैसे हैं? अब आप 3 का दंड दीजिए, उसने पूरा बोला ही नहीं। ये भी हम सुबह से अच्छा कर रहे थे। आप 3 का दंड दीजिए और वो वाले इंटरेक्टिव इडियम बोलिए जो हमने सुबह चर्चा करी थी, जुबान पे नहीं आ रहा है। आपने शायद ढूंढा होगा, चोर चोर मौसेरे भाई को क्या बोलते हैं बेटा, बता दो। Cut your coat according to your uh, cloth. Here you go. Here you are. हाँ स्नेहा, तुमने उसमें अपने रजिस्टर में पहली लाइन क्या लिखी बताओ जरा, चेक भी कर लेते हैं। हियर वी गो, शुरू करें। बेटा अभी जो हमने लिखवाया उसकी पहली लाइन बोलिए। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? स्पेलिंग बोलिए, देखें हम चेक कर लें स्पेलिंग सही है कि नहीं। HOW, हाउ, RAREYOU। वो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जिसमें अधिबोधक चिन्ह लगाया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। यस सर।
2-3 बिंदी लगाई है नहीं लगाई वो भी पूछ ले। यस सर। चलिए अब आंसर बताइए। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। स्पेलिंग बताइए। आई ए एम एम फाइन, एम ऐसा भी बोल दो। एम मिला के एम बोलते हैं। एम एफ आई एन ई फाइन, हाँ। थैंक यू, THANK YO एंड वाई AN। ओ के साथ यू नहीं लिखा बेटा, हमने तो यू भी लिखा। ये थैंक देखो यू। बेटा, एक्चुअली हमने वाई ओ यू सुने ही नहीं, या तो वॉइस शॉपिंग हो गई, नेटवर्क फेल हो गया, कुछ ना कुछ हुआ, या तुमने नहीं बोला हो। एक बार फिर से बोल दो तो अच्छा लगेगा। आई एम फाइन, थैंक यू, THANK इस बार मुझे डॉट फिर यू नहीं सुनाई दिया। मेहता मैडम आपको सुनाई दिया? यू ठीक है, छोड़ दिया चलो मैंने। सुनाई दिया, हमने विश्वास कर लिया कि सुनाई दिया। एंड AND YOU यू। अब पूरा बोल दो। मैं बढ़िया हूँ, पहले धन्यवाद। पहले इंग्लिश बोल दो बेटा, अपन इतने पैसे इंग्लिश के लिए खर्च कर रहे हैं ना, एक बार इंग्लिश बोल दो पूरा। आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। अब हिंदी बोल दो। मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद, और आप कैसे हैं? है लिखा आखिरी में, हमने है सुन नहीं पाए इस बार। आप कैसे हैं? हाँ, और आखिरी लाइन और लिखी बेटा। प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी गुड, और उसके बाद आखिरी लाइन लिखी। नो सर, वो नहीं लिखी है मैंने। तो आई एम चलो लिख लो। सर लिख लिया। आई एम AM अब देखिए मेहता मैडम, मैं होता स्नेहा की जगह तो मैं बोलता सर आई एम डन, या देयर बोल देता, यस। या आई हैव रिटन, तीन में से कुछ एक बोलता। लेकिन स्नेहा ने कितनी विनम्रता के साथ, बालपन के साथ सर लिख लिया बोल दिया। मैं तो मैडम, इंग्लिश कोई आपको सिखा नहीं सकता है, ये हमने लिख के रखा है बाहर। इंग्लिश अंदर से जब तक नहीं निकलेगी। और दूसरा, ये एक्चुअली ये स्नेहा के बारे में चर्चा कर, आपकी जब माइनस पॉइंट है उस पर हमने सुबह चर्चा की, प्रतिदिन करेंगे अलग से। तो स्नेहा के साथ दिक्कत यह है जो अभी अभी आपने देखी, अंदर से निकल ही नहीं रही है, इच्छा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं है, कसम से एकदम सही सही बात ये। वरना देयर नाम का सेंटेंस दिया जिसका अर्थ होता हो गया, आई एम डन दिया ही लोग 25 बार बोलते रहते हैं, मेरा हो गया। हम बार बार पूछते हैं हैव यू रिटन दिस, शुड आई इरेज दिस, कुछ नहीं बोला। तो ये है पूरा फंडा। लेकिन चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कोई इडियम मिला है, लिखा है क्या बेटा, बताएं। Oh, sir. Cut your coat according to your class. ठीक है, पहले इसका एक बार और अभ्यास करते हैं। बहुत देर से मेहता मैडम शांत थे, उनसे हम पूछ रहे हैं, फिर वो तुमसे पूछ। मेहता मैडम, हाउ आर यू?
I am fine. Thank you. And you? I am also fine. Thank you. आप सर अब मुझे क्या बोलना है समझे नहीं। हमने आपसे पूछ लिया, आप उसको आगे बढ़ाइए, फिर वो हमसे ओके पूछे, राउंड हो जाएगा ओके पूरा। ओके। स्नेहा, स्नेहा हाँ बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। आई एम ऑल्सो फाइन। स्नेहा तुम कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। और आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ बेटा। सर हाउ आर यू? I am fine. Thank you. And you? आई एम आल्सो फाइन। सर आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। और आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। अब पहले चैप्टर से अपन आगे बढ़ते हैं। 4-4 सेंटेंस बनाएंगे एक सब्जेक्ट लेके, लेकिन वर्ब सब लोग बदलेंगे। जो वर्ब हम रखेंगे, जो सब्जेक्ट हम रखेंगे, वो आप दोनों नहीं रखेंगे। आप कुछ नया लेंगे। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव। शी कैन डांस। वह डांस कर सकती है। इन्वर्टेड सेंटेंस। कैन शी डांस? क्या वह डांस कर सकती है? कैन शी डांस? क्या वह डांस कर सकती है? तीसरा नेगेटिव सेंटेंस। शी कैन नॉट डांस। वह डांस नहीं कर सकती है। आखिरी सेंटेंस। कोई भी WH लेना, आपको अपने मन से लेना है। हम ले रहे हैं वेयर। वेयर कैन शी डांस? वह कहाँ डांस कर सकती है? मेरे 4 सेंटेंस बन गए। अब मेहता मैडम बनाएंगी अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब लेके। फिर बेटा आप बनाना स्नेहा अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब लेके। अभी पता नहीं मेहता मैडम आपने ध्यान दिया कि नहीं स्क्रीन पे, जब हम सेंटेंस बना रहे थे उस समय स्नेहा बार बार नीचे देख रही थी किसी चीज को। मतलब जैसे और कुछ बच्चे होते हैं, उनका पूरा ध्यान स्क्रीन पर रहता है कि सर क्या बोल रहे हैं, या वो क्या बोल रहा है, या वो क्या बोल रही है। तो अभी हमने इस बात पे ध्यान दिया, हम पूरा ध्यान रखे हुए थे। अब क्योंकि 2 लोग हैं, वैसे भी 4 लोग भी होते, और यहाँ आप पीछे चेयर देखिए, सुबह के बैच में 12 लोग हैं। पीछे 4 चेयर रखी, दाएं तरफ 4 है और बाएं तरफ 4 है। लेकिन मजाल है कि कोई हमसे मिस हो जाए, किसी का भी ध्यान इधर उधर जाता है, हम फट से उसको प्रणाम करते हैं। और अगर ऐसा कुछ संभव हुआ, भगवान की अगर कुछ कृपा हुई, चमत्कार हुआ कि नागपुर आके अगर हमें फिजिकल क्लास लेनी पड़ी, तो सबसे पहले हम मेहता मैडम और स्नेहा को बुलाएंगे, और अलग से कोई फीस नहीं लेंगे। जो ले लिया वो ले लिया। फिर वहां पे हम जो हार्ड वर्क करेंगे उससे निकल के आएगा क्रूड ऑयल, जो कि आज की डेट में बहुत महंगा हो गया है। चलिए इस फालतू की बात को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मेहता मैडम 4 वाक्य बनाएंगे, फिर स्नेहा बिटिया 4 वाक्य बनाएंगे। दे कैन प्ले इन द ग्राउंड। वह ग्राउंड में खेल सकते हैं।
बहुत Can they play? अच्छा, 1 सेकेंड रुकिएगा। बहुत बढ़िया चीज, मुझे यहाँ से वहां तक जाना है, इसलिए मैं स्क्रीन को ऑफ कर, लेकिन आपसे बातचीत करते हुए मैंने स्पीकर को ऑफ नहीं किया है, केवल स्क्रीन को ऑफ किया है। लेकिन देखिए, जिस बात पे मैं चर्चा कर रहा था वही अचानक सामने आ गई। अगर जैसे आपने इन प्रीपोजिशन लगा दिया, ठीक, अब क्या होगा कि आपको ग्राउंड को पहले खोदना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जाके आपको खेलना पड़ेगा। खाली एक प्रीपोजिशन के गलत होने से हिंदी में कितना अर्थ गड़बड़ हो जाता है, ये चित्र देख के आपको समझ में आ सकता है कि इन लगाया आपने और अंदर जाना पड़ेगा, और उसके ठीक बाजू में देखिए तो आपके का सही प्रपोजिशन ठीक उसी के बाजू में दूसरे नंबर पे मौजूद है। इज इट विजिबल टू यू? क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? Sir, not No, clear, visible. it is not visible properly. No. Yes, sir. Clearly visible. अब आप अपना निर्णय लीजिए कि आपने इन लगाया है तो ग्राउंड को खोदना पड़ेगा, तो क्या इन वहां उचित होगा? No, sir. तो बदल दीजिए तुरंत। They can play uh, to the ground. Yeah. Sir, on आएगा क्या? I not visible. I can try. Not clearly. सर आपकी उंगली ऑन, सर ऑन द ग्राउंड। करेक्ट। ऑन द ग्राउंड कभी बोला ही नहीं हमने सर, इसीलिए। ये सच ओके। चर्चा समय हो रही थी कि हम लोग, और हम इस पे बहुत क्रोधित नहीं होते हैं क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। अब देखिए, नेहा ने अपना कैमरा बंद कर लिया, अब क्या जरूरत है कैमरा बंद करने की? फिर अपन नॉर्मल ही कॉल पे क्लास कर लेते हैं ना, जब एक दूसरे को देखना ही नहीं है तो फिर नॉर्मल फोन कर लेते हैं। काहे को गूगल मीट में इतना अपना डेटा बर्बाद कर रही बेटा? कोई काम निपटाना, ये बहुत एक्सक्यूजेस हैं और आप इसको परिणाम आपको मिल रहे हैं बराबर, मुझे कुछ यस बोलने सर, की जरूरत नहीं है। यस सर, यस नेहा, सर। तुम्हें तुम्हें उसके परिणाम भी मिल रहा है, ये जो तुम करती रहती हो ना। अभी तो कम से कम भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही प्रोफाइल में बैठने लगी हो, वरना तुम अधलेटी सी रहती थी हमेशा। The charging is dead. Charger is coming. अब देखो कितनी अच्छी बात की बेटा तुमने, कि इससे साफ साफ समझ में आता है कि आप क्लास को कितनी अहमियत देते हो। ये साफ साफ समझ में आ रहा है ना? मतलब एक बंदा है जो 4 बजे की क्लास के लिए सारी तैयारी करके बैठ जाता है, बढ़िया तैयार सर, होता है, सब कुछ अप टू डेट कर। बेटा तुम सर कितने आज भी एक्सक्यूज दे दो, नो सर, लेकिन एक चीज समझो, आज जियो देयर इज नो नेटवर्क इज नॉट एक्सक्यूज ऑफ अवेलेबल। फेलियर। ये जो है यस ना, आई नो बेटा। चलो ये तो आज की बात हो गई, और पिछले 4 महीने से ये जो एक्सक्यूज देने का हम भारतीयों का काम है ना, ये हमें सफल बनने से रोकता है। हम हर चीज का एक बहाना बना के सामने रख देते हैं बचने के लिए। We always make one excuse,
वी आर ऑलवेज रेडी टू गिव वन एक्सक्यूज। एक ना एक एक्सक्यूज देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब हमें तो कई बार आश्चर्य होता है कि बहाना बनाना हमें किस क्लास में सिखाया गया। फट से एक कारण सामने है, और जितने आविष्कार हुए हैं, अगर वो न्यूटन बोलता कि वो सेव नीचे गिर रहा है पेड़ से, तो मेरे को क्या करना है यार। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का तो बनता ही नहीं कभी। चलिए अब बात को इस पर ज्यादा नहीं खींचते हैं बेटा, सेंटेंस बना लेते हैं जिसमें सार। सर, दे कैन प्ले ऑन द ग्राउंड, वे ग्राउंड में खेल सकते हैं। अब एक सुझाव और मैं देना चाहूंगा, इसको आप बाद में कीजिएगा। क्लास खत्म होते ही आप, या क्लास खत्म होते ही क्यों, जो अब मैं आपको सुझाव दे रहा हूं मैं स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ आपको। मैं लेकिन थोड़ी देर के लिए गायब हो जाऊंगा, दिखूंगा नहीं लेकिन मेरी आवाज सुनाई देगी। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ क्रोम में। आपको दिख रहा है ये? यस सर। ये पढ़ के बताइए जो नीला नीला लिखा है। What is the right sentence? Play on the ground or play in the ground? English language learns step आंसर भी है नीचे। exchange. नीचे Answer: हाँ। I play on the ground. Is the ground press इज द करेक्ट to फ्रेज। इज द is करेक्ट the फ्रेज। correct phrase to use since you are playing on the surface of the ground and the ground is not surrounding you. Yes, sir. तो ये जब ऐसा जादूगर हमारे पास है मोबाइल में कि जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सर फिर हमने कभी ये चेक ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं इसमें मैंने तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ कि जो चीज इंग्लिश से संबंधित है उस पे कभी भी कार्य किया नहीं गया है एक्चुअली। यस। मैं तो बल्कि ये बोलूंगा कि अगर मेरा बस चले तो मैं जैसे ही बैच शुरू होता हर बच्चे से बोलूं कि बेटा पहले तुम बाजार जाओ, 500 रुपये खर्च करो और ये ले आओ। क्योंकि जिसके घर में डिक्शनरी नहीं है वो कितना पुअर है, ये सेंटेंस हमने कहीं पढ़ा था, शायद इन्होंने लिखा था विवेकानंद ने, कि द पर्सन हु इज नॉट हैविंग मनी इज नॉट पुअर, बट द पर्सन हु इज नॉट हैविंग लाइब्रेरी इन हिज हाउस इज पुअर। ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। लेकिन मजबूरी ये है मेहता मैडम कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं माली हालत बहुत कमजोर होती है, तो मैं उन्हें बाध्य नहीं कर पाता हूँ। और मैं हाथ उठाता हूँ कि कौन ऐसा कर सकते हो बेटा कि अपना पॉकेट मनी कुछ दिन तक जमा करके रखो और एक डिक्शनरी ले लो। वैसे तो डिक्शनरी मैं आपको बताऊं, आप आश्चर्यचकित करेंगी, मुझे विरासत में 2 डिक्शनरी मिली। एक दादाजी की थी जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश थी, फिर एक जो पिताजी की थी वो छोटी वाली थी, वो इंग्लिश टू हिंदी थी।
तो जिसके परिवार में उसको विरासत में डिक्शनरी नहीं मिली है, वो कम से कम अपने बच्चों को विरासत में एक डिक्शनरी दे के जाए, ताकि उसके बच्चे थोड़ा प्राउड कर सके कि हाँ भाई हमारे पेरेंट्स डिक्शनरी का प्रयोग करते थे। ये कितना प्राउड फील होता है कि भैया मेरे घर में डिक्शनरी है जो मेरे दादाजी यूज करते थे, फिर पिताजी ने यूज की। तो डिक्शनरी आप जरूर खरीद लें, क्योंकि आप कैपेबल हैं तो आपको जरूर खरीद लेना चाहिए। ऑक्सफोर्ड की ही खरीदिए और इसका प्रयोग कीजिए। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी 500 के आसपास मिलेगी, किसी से मंगवा लीजिए, खुद जाके लीजिए चाहिए। और अगर दुकान वाला पूछे कौन सा एडिशन देना है, तो आप बोल सकते कोई सा भी देते हैं। हम हर साल खरीदते हैं क्योंकि ये हमारा व्यवसाय है। हर साल एक नया संस्करण निकलता है, कुछ नए शब्द शामिल होते हैं, कुछ पुराने हटा दिए जाते हैं, लेकिन आपको इससे कोई वो नहीं है। आप बोलना यही दे दी जो सामने है, बस ऑक्सफोर्ड की होना चाहिए। बहुत मजा आता है डिक्शनरी देखने में, हमने खूब एंजॉय किया। एक शब्द ढूंढने जाओ घंटा भर उसी में लगे रहते हैं, दूसरा मिल जाता है, बाजू में तीसरा मिल जाता है, अरे ये तो पता ही नहीं था, एक और मिल जाता है, फिर उसमें लिखा रहता है इसका मीनिंग उस पेज पे है। फिर पलट के उस पेज पे गए, वहां एक नया मीनिंग मिला, और मजा आता है। फिर एक नए मीनिंग की तरफ बढ़ गए, अरे ये तो पता ही नहीं था, इतने दिन हो गए इंग्लिश पढ़ा रही है तो मालूम ही नहीं था। फिर खुशी होती है। तो वो जो खुशी होती है एक एक नया शब्द मिलने से, वो खुशी आप फील करके देखिए। जब आप ढूंढेंगे कोई चीज तब आपको वो खुशी मिलेगी। चलिए, पहला सेंटेंस फिर से बोल दीजिए, फिर दूसरा। सर फिर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वह ग्राउंड पर खेल रहे थे या यही ग्राउंड तो में खेल सुबह हम रहे थे? चर्चा कर रहे थे कि हिंदी के हिसाब से इंग्लिश हाँ, कभी नहीं करना है भाई, आपकी हिंदी वही रहेगी। तो फिर हिंदी में तो वही बोल सकते। देखिए कितनी ओके सारी सर। बात की हमने, 56 मिनट सुबह बात हाँ। की कि ये अगर आप फिर हम आपको वही दिखा देंगे। चलिए एक बार फिर से दिखा देते, स्नेहा बेटी अभी देख लेगी। इसलिए मैंने बोला कि काश अगर ऐसा कुछ बन जाए। ये बीच में अभी फिर गायब हो गई। बताओ बेटा ये क्या लिखा है इसमें? सर बड़े सपने देखिए, इसका उनको पूरा करने के लिए नहीं 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 नहीं, इतना नहीं, केवल लाल वाला पढ़ना। बड़े सपने देखिए। अब बेटा इसका इंग्लिश क्या बनाओगी? 3 लेटर है, बड़े सपने देखिए। सी हाँ वेरी गुड, सी बिग बिग, ड्रीम्स। वेरी नाइस। मेहता मैडम आप बताइए, सुबह चर्चा की थी। मेहता मैडम यू आर म्यूट। ड्रीम। अब देखना बेटा, हम गए बड़ौदा बैंक में किसी का, हमने ये देखा, हमने उनसे निवेदन किया कि मुझे ये चाहिए। तो पहले तो उसने मना कर दिया हमें, चपरासी ने बोला वो साहब बैठे उनसे पूछ लो। तो मैंने जाके उनसे इंग्लिश में पूछा, कैन आई टेक दिस पोस्टर? तो बोलते, अब जैसे इंग्लिश में पूछो अलग असर पड़ता है। तो उन्होंने पूछा वाई? हमने बोला एक्चुअली आई एम हैविंग इंग्लिश क्लासेस एंड आई वांट टू शो दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स टू माय स्टूडेंट्स। बोलते ओके ओके ओके। हमने बोला आई वांट टू, वन फॉर हिंदी एंड वन फॉर इंग्लिश। उन्होंने बोला ओके टेक इट। तो ये दूसरे तरफ ये उसी का इंग्लिश लिखा हुआ, पढ़ दो बेटा इसने। हाँ बेटा हमें सुनाई नहीं दे रहा, यू आर म्यूट। सॉरी सर, ड्रीम बिग। मैडम आप भी एक बार बोल। ड्रीम बिग।
अब एक बार इसको पढ़ लेना बेटा। उनको पूरा करने के लिए रोज बचत कीजिए। अब सोचो बेटा, सबसे पहले क्या अपन उनको रखेंगे, फिर नो पूरा सर। रखेंगे, फिर करने के लिए रखेंगे। अच्छा बताओ, के लिए अपन लोग क्या लगाते हैं? मेहता मैडम आप बताइए, के लिए। मेहता मैडम। for हाँ, अब देख लीजिए उसका इंग्लिश, for पढ़िए इसको। for सेव सेव एवरी डे टू save फुलफिल every इट। day, सेव एवरी डे टू। save every day to fulfill. अब देखिए, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा। अब इसमें फॉर तो कहीं नहीं आया, तो ऐसा तो नहीं कि दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। दिस इज रियल इंग्लिश। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इंग्लिश में ऐसा होता है, और ये चीजें कहीं किसी क्लास में जाके सीखने की नहीं है। हमेशा ऑफिस में जा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, चीजों को हम देखें। उसका इंग्लिश भी मौजूद है, हिंदी भी मौजूद है कई जगह, उसको स्वीकार कर ले। और एक और चीज हमने शुरू में दिखाई थी, चलिए आज आप दो लोग हैं तो वो चीज फिर से दिखाते हैं। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी संभाल के रखी हुई हैं जो कि ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ होता ही है। तो फिर हमने उसके लिए बहुत सारे ऐसे पोस्टर जमा करके रखे हैं, बढ़िया फाइल में रख लिए हैं। अब आपके को मैं बताऊं, मुझे ये भी रखना पड़ता है, कई बच्चों को ये तक नहीं आता पहचानना, का खा गा खा। तो मैं रखता हूँ संभाल के कि चलो ऐसे बच्चों को यहाँ से शुरू करेंगे। वो रेफरेंस फिलहाल तो नहीं मिल रहा है मुझे, कहाँ रख दिया मैंने। चलिए तब तक आप सेंटेंस तो बनाइए, मैं सुन रहा हूँ। Okay, sir. Now I am repeating. They can play on the ground. On the ground,
वे ग्राउंड में खेल सकते हैं? कैन दे प्ले ऑन द ग्राउंड? क्या वे ग्राउंड में खेल सकते हैं? दे कैन नॉट प्ले ऑन द ग्राउंड। वे ग्राउंड में नहीं खेल सकते। व्हेन कैन दे प्ले ऑन द ग्राउंड? वे ग्राउंड में कब खेल सकते हैं? करेक्ट। इसमें um, uh, we can we can speak English every day. हम सब रोज प्रतिदिन इंग्लिश बोल सकते हैं। कैन वी स्पीक इंग्लिश एवरी डे? क्या हम इंग्लिश प्रतिदिन बोल सकते हैं? गुड गुड गुड। एंड वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एवरी डे। हम इंग्लिश प्रतिदिन नहीं बोल सकते हैं। वेरी नाइस बेटा। एंड WH में what can what can we speak English every day? हम Sorry. थैंक यू मैडम। मैं सोच ही रहा था कि अगर मुझे सॉरी बोलना पड़ा तो बहुत गलत हो जाएगा। आपने सॉरी बोल के बहुत अच्छा किया, थैंक यू। ये जो अलर्टनेस ये शुरू से रिक्वायर्ड थी, बिल्कुल शुरू से चाहिए थी, लेकिन अब जाके मिली। थोड़ी देर पहले वो इन्वर्टेड सेंटेंस बना चुकी है इसने हाँ, पहला सेंटेंस फिर से बोलो अपना। we can speak English every day. हिंदी बोलो। तो हम इंग्लिश प्रतिदिन बोल सकते हैं। हाँ, अब दूसरा बोले। इन्वर्टेड में कैन वी स्पीक इंग्लिश एवरी डे? क्या वे इंग्लिश बोल सकते हैं? अब इसमें क्या लगाया ना तुमने शुरू में, लेकिन यस कहीं जरूरी है। वॉट लगा क्या? नो सर। हाँ, हर जगह एकदम से वॉट नहीं लगा सकते। क्वेश्चन में क्वेश्चन WH में हाँ, WH है ना ये बेटा। WH फोर नेगेटिव के बाद फोर व्हाट? नहीं, अब वॉट इसमें लगेगा ही नहीं। वॉट का क्या मतलब निकालोगी बेटा? व्हेन कब बोल सकते हैं? हम्म व्हेन व्हेन कैन वी स्पीक इंग्लिश एवरी डे? सॉरी, कितना अजीब नहीं लग रहा बेटा? वे तुम वैन भी बोल रही हो और एवरीडे भी बोल रही हो। यस। हाउ सर? हाउ कैसे? हाँ हाउ हाउ बेटा, कैन? एवरीडे लगाना हर जगह जरूरी है क्या? नो सर। अगर तुम वैन पूछ रही हो किसी से तो एवरीडे की क्या जरूरत है? कॉमन सेंस है ना। हाउ हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश एवरी डे? चलो एवरीडे लगाने, ये एक बड़ी दिक्कत है। मेहता मैडम इसको देखिए कि मेरे मुर्गे की एक टांग मानने को तैयार नहीं है। उनने देख लिया मुर्गा एक टांग पे खड़ा था, कई बार आराम यस। करने के लिए खड़ा रहता है, वे इंग्लिश तो कैसे पकड़ बोल लेते सकते? हैं। अब देखो वो सुन नहीं रही है, यही शुरू में आपके साथ भी है। अब वो इतना आतुर है कि मेरा एक सेंटेंस सही हो जाए तो मेरी दुनिया बिल्कुल, ऐसे ही आपके साथ भी होता है। आप कुछ बोल रहे हैं तो भैया सुन लो ना यार। ये दोनों, आप दोनों एक मामले में तो बिल्कुल सेम टू सेम। सुन, जब कोई, या तो तुम सही सही बोल दो तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, और नहीं तो तुम गलत करो फिर हम बोलना शुरू करेंगे।
अरे ये कॉमन सेंस है कि जब आप बोल रहे हो व्हेन, तो एवरीडे की क्या जरूरत है। अब देखिए, हमने हिंदी अखबार में इंग्लिश कितनी मात्रा में होती है, ये हमने बहुत सारे निकाल के रखे हुए हैं। ये दिख रहा है? Yes, sir. You are clearly Yes. visible. पढ़ दो क्या लिखा है। Celebrity Sunday with Papa. मैडम आप भी पढ़ दीजिए। Celebrating Sunday with Papa. अब हिंदी अखबार में कसम से इतनी अंग्रेजी परोस रहे हैं कि आपको अंग्रेजी अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने सब कलेक्शन करके रखा है, शुरू में बच्चों को दिखाते हैं। अब अगला आ रहा है, पढ़ना बेटा। Meeting on a Sunday. कितनी खूबसूरत तरीके से सिखा रहे हैं। मैडम आप भी बोल दीजिए। Meeting on a Sunday. सही प्रपोजिशन लगाना भी सिखा रहे हैं, सही आर्टिकल लगाना भी हिंदी में सिखा रहे हैं। कितना सारा अंग्रेजी में का हिंदी में सिखा रहे हैं वो आपको। पढ़ो बेटा। रेस को भाग सॉरी आपको याद हो, नो सर। आपको याद हो तो आप पढ़ दीजिए। सर रीडर्स ही पढ़ा था अभी, हाँ रीडर्स एकदम गायब हो गया एकदम। रीडर्स को भा गई टर्निंग पॉइंट्स। बेटा अब तुम भी पढ़ दो। रीडर्स को भाग गई टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट किसी किताब का नाम है, पाठकों को बहुत पसंद आ गई, पढ़ने वालों को, रीडर्स को भा गई टर्निंग पॉइंट। अब अगला फिर से पढ़ो बेटा, पहले तुम पढ़ो। स्पीक अप। अब आप भी पढ़ दीजिए। स्पीक अप। हाँ, कितनी सारी अंग्रेजी हिंदी में है। अब ये देखिए क्या लिखा है, पढ़ो बेटा। सभी को स्टार मेरे फेवरेट है। आप भी पढ़ दीजिए। नॉट विजिबल, हाँ सब एक, सभी को स्टार्स मेरे फेवरेट हैं। हिंदी बताइए, पहले आप बताइए मैडम, फिर वो बताइए। सब स्टार्स मेरे फेवरेट, मैं चाहती हूँ यानी कि मेरे फेवरेट हैं सर, फेवरेट को फेवरेट ही अब हिंदी में हाँ ठीक है, एकदम फेवरेट को एक्टिविटी। फेवरेट बोल दीजिए। हाँ, ये सभी स्टार्स मेरे फेवरेट हैं। चलो स्नेहा सभी बेटा, को तुम्हें क्या स्टार्स, समझ में आ रहा है, तुम बताओ। सभी को स्टार्स मेरे पसंदीदा है। वेरी गुड। अब मैं बता देता हूँ। ये हीरोइन कह रही है कि मेरे साथ में काम करने वाले सभी स्टार्स मेरे फेवरेट। को स्टार्स अंग्रेजी का शब्द है, यानी साथ में काम करने वाले। पढ़ो बेटा। मोबाइल पर साइन की फिल्म। मैडम आप भी पढ़ दीजिए। मोबाइल पर साइन की फिल्म। बड़े बड़े हीरो मोबाइल पे ही फिल्म साइन कर देते हैं। स्टेजी नहीं था यह। चलो उसको छोड़ दिया, वो साफ नहीं दिख रहा था। इट्स माय कॉर्नर। हम्म इट्स माय कॉर्नर। अब ये कौन सा चैप्टर है, कौन बताएगा। बी प्रेस बी, ऑर्डर एंड ऑर्डर रिक्वेस्ट तो नहीं है बेटा। इट्स माय बी प्रेजेंट है सर। इसको इंग्लिश में लिख के बताऊं क्या मैं।
या आप बताएंगे हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखें, कोई भी It is clicking. बोलना पड़ेगा तब मैं लिखूंगा। IT it, वेरी गुड, थैंक यू। my, my, so, CON, and here. मैम आपके हिसाब से ये सही लिखवाया क्या बिटिया ने? सर इट के बाद इज आएगा, इट इज माई कॉर्नर। यस, एक्चुअली वो ऐसा लिख, क्योंकि उसमें it कहीं अलग से नहीं है, देखिए। It's तो present continuous tense. It's हाँ, वेरी गुड। प्रेजेंट कंटिन्यूस का फार्मूला बताइए। subject is a हम्म, ing. कहाँ दिख रहा बेटा तुम्हें इसमें आईएनजी? नहीं, no sir, वैसे it's a mar. नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो आईएनजी आता है बेटा, इसमें Yes, कहाँ दिख रहा तुम्हें? no sir, it's my corner. मैडम आप बता दीजिए। Yes. सर प्रेजेंट, बी प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि बी चैप्टर जो है वो टेंस नहीं है। सर सॉरी टेंस सर। एक तरफ है, सारे के सारे बी हाँ, चैप्टर एक तरफ है, ये दोनों बिल्कुल बी पे, जुदा चीज है। बी प्रेजेंट सर समझ यहाँ में आता है, बी प्रेजेंट होता है। अब देखिए, बी। बाकी सारे बच्चे बी प्रेजेंट को बी प्रेजेंट बोलते हैं, आप हमेशा से शुरू से उसको बी प्रेजेंट टेंस बोलते आ रहे हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। या सर, चलिए, ये बी प्रेजेंट है तो बताइए इसमें कौन सी चीज क्या? इसमें इज की, इज है इसलिए बी प्रेजेंट है सर। ये क्या है? व्हाट इज? ये मेन वर्ब है सर, इट इज मेन वर्ब। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज मेन वर्ब। आगे बढ़िए। इट इज सब्जेक्ट एंड इज मेन वर्ब। जी, वेरी एंड नाइस, पूरा कॉर्नर, पूरा। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? द सब्जेक्ट in this sentence is it. आप कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रही हैं? वो जवाब दे नहीं पाएगी, आप हमसे पूछिए, मैं बोलता हूँ। What is the subject in this sentence? इट इज द सब्जेक्ट इन दिस। Okay. चलो स्नेहा, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? स्नेहा जागो मोहन Sorry sir, प्यारे। this come again sir. थैंक यू फॉर सेइंग कम अगेन। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? The subject, the अच्छा, subject. अब तुमने अपने पैरों पे क्या मार ली बेटा? Fuller. इतना आसान और सिंपल आंसर दिया था जो सब बोलते आ रहे हैं, और मैं तो मैडम उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोलती हैं, तुमने भी वही पकड़ लिया। आप दो आंसर, देखते हैं कितनी देर में देते This जो subject. हम आराम से खड़े हुए हैं, ठीक है, दो आंसर। The question is come. मैडम से बोलो, वो कर देंगे। Mehta aunty. Question the repeat the question. What is the subject in this sentence?
The subject is in this sentence it. Sorry. Sorry, Sneha. ये जो तुमने काम रखा है ना बेटा शब्दों का, ये ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की ने जीन्स के ऊपर ब्लाउज पहन लिया हो, The subject. ऐसा लग रहा है। कोई मैचिंग ही नहीं। अब हम Subject. एक बार तुम पूछ लो, शायद उन्होंने सरल वाला तरीका सुन लिया हो और वो बोल दे, पूछ के देख। Mehta aunty, please come again. बेटा तुम क्वेश्चन करोगी तब तो वो आंसर देंगे। What is the what is the subject is this sentence? It is the subject in this sentence. कंप्लीट द प्रोसेस, इसने इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? It इस वाक्य में सब्जेक्ट है। अब पूछते जाइए, पूरा आपके सामने एक एक करके एक दूसरे से पूछते जाइए। What is the subject of helping verb? Sorry. What is helping verb this sentence? There is no helping verb in this sentence. इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? इस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है। What is the main verb in this sentence? The main verb this sentence is corner. Sorry. आप हमसे पूछ लीजिए या हम आपसे पूछ लेते हैं। व्हाट इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस? सर मुझसे पूछे। जी। Is the main verb in this sentence? Come again, Is please. the main is the main verb in this sentence? Absolutely right. Is the main verb in this sentence? ये नीचे भी लिखा, ऊपर भी लिखा। ये जो है is, it is। आगे बढ़िए, कौन बढ़ेगा? What is my in this verb? In this sentence? My is this sentence. चलिए मैं आपसे पूछ, बेटा आप पूछ लो आंटी। What is the my सॉरी, अब देखिए मेहता मैडम, आपने 2 सेकंड पहले एक सवाल किया, वही सवाल स्नेहा को आपसे करना है। इस बात को गौर से देखिए। what is my this sentence? हम तो रुक नहीं पा रहे, हम तो सॉरी Sorry. बोलेंगे। Sorry. Sorry. आप बोलो ना बोलो। Sorry सर बोला है। जी, अब 2 ही लोग हैं तो अपने को माइक ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। What is the my word सॉरी। sentence? Sorry. Sorry. चलिए मेहता मैडम, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट इज माई इन दिस सेंटेंस? My is object in this sentence. और सर my is possessive Sentence. possessive adjective in this sentence. एब्सोल्युटली नाइस, वेरी नाइस। इस वाक्य में माई
क्या है? इस वाक्य में माय पजेसिव एडजेक्टिव है। आपकी आवाज आज बहुत धीमी है, थोड़ा जोर से एक बार बिटिया से पूछ लीजिए। कॉन्फिडेंस झलकता है आवाज में। ओके सर। व्हाट इज माय इन दिस सेंटेंस? My is this sentence positive sentence. सॉरी। चलिए आप My अगला, sentence is चलो वो प्रयास कर रही है, एक बार आप प्रश्न अपने मन से, वो कम अगेन भी तो नहीं बोल रही है, मैं बोल देता हूँ कम अगेन मेहता मैम। व्हाट इज माय इन दिस सेंटेंस? this sentence is my positive adjective sentence. सॉरी सॉरी। My is मेहता my मैम आप अगला, अच्छा वो प्रयास कर रही है, जब हम बोलना शुरू करते हैं तभी वो बोलती है। चलिए गो अहेड, गो अहेड। my मेहता मैडम आप हमसे अगला आखिरी सवाल पूछ लीजिए। व्हाट इज कॉर्नर इन दिस सेंटेंस? स्नेहा बेटा, व्हाट इज कॉर्नर थैंक इन यू। दिस सेंटेंस? the corner is this sentence. सॉरी। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज कॉर्नर इन दिस सेंटेंस? मेहता मैम। Corner is pronoun in this sentence. Object. So corner is pronoun. Corner. Noun. Noun or noun. Noun. इस वाक्य में कॉर्नर क्या है? इस वाक्य में कॉर्नर नाउन है। बी चैप्टर का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप ऐसे ही यस। देख लिया करें बेटा। आप आपने पता नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, उसमें सब है, लाइन से है, ढूंढें देखें, पूरा चैप्टर इतने विस्तृत रूप से समझाया गया है। बोलिए तो मैं दिखा दूं आपको, अभी दिखा दूं। 6:03 हो गए हैं, तो अब विराम देना होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, आप Thank you. बहुत पेन